Friends, I want to comment one thing before starting this session. I want to comment that geography is an amazing subject and very interesting subject. Now, why? Geography helps us understand basic physical system that affects everyday life. See, most of you don't like history, some maybe don't like maths, or you all have your preferences. But अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग वे में स्टडी करते हैं और कोई भी सब्जेक्ट को अगर ऐसे स्टडी करते हैं कि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, देन आई एम श्योर दैट यू विल फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट. ना ज्योग्राफी में हमने रिसोर्सेज से शुरुआत की, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब इस वाले सेशन में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि ये वाला जो सेशन है ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ बी concentrated, be focused and understand what are types of resources. See दोस्तों, types of resources are classified on the following basis. Okay, अभी on the basis of origin it is biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility renewable and non-renewable, on the basis of ownership individual, community, national and international, on the basis of status of development, potential, developed, stocked and reserve. All of these types we are going to learn in this following upcoming minutes of this video. Okay, make sure you be very concentrated towards all the basis of resources, because one of the most important question is types of resources to be asked in your examination, board examination. Okay, be kindly aware of everything, every example that I am giving. अच्छा, before moving forward to types of resources, let us एक बार revise what is resource. So everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, is termed as resources. This was the definition we learned in our previous video. Now we are moving forward with types of resources. दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब क्या? उद्घाटन. ओरिजिन मतलब बेसिक. अगर बेसिक लेवल से हम जाने तो रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, एक बायोटिक रिसोर्सेज और एक अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज को हम नॉन नेचुरल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं. अभी बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? एनीथिंग विच इज़ बायोटिकली मेड, बायोलॉजिकली मेड. ओके, बायोलॉजिकली मेड क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, फिश, जिसके अंदर लाइफ है, वो सारे होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. These are obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, fisheries and livestock, etc. And totally opposite of this is abiotic resources. The name itself indicates biotic and abiotic. All those things which are composed of non-living things. इसके अंदर लाइफ है, ये लिविंग थिंग्स है, ये बायोटिक रिसोर्सेस है. अबायोटिक में देयर इज नो लाइफ, they are non-living things, are called abiotic resources. For example, rock and metal. Okay, एक बार देख लो, बायोटिक रिसोर्सेस में ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ों के अंदर जान है, लाइफ है, तभी इसको बोला जाता है बायोटिक रिसोर्सेज. दे ऑल आर फाउंड इन बायोस्फीयर, बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड. ओके, और ये सारे जो रिसोर्सेज है जिसके अंदर लाइफ नहीं है पर हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, उनको बोला जाता है अबायोटिक रिसोर्सेज. ओके, वाटर, विंड, सनलाइट, रेन, सॉइल, रॉक, माउंटेन्स, क्लाउड, स्नो, एवरीथिंग इज अबायोटिक रिसोर्सेज. दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कोई भी एक रिसोर्स कितने टाइम के बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं और कितने टाइम तक वो रिसोर्स रहता है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दोस्तों, हमारे पास दो टाइप्स है. वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब उसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जो करोड़ों साल ले लेते हैं रिन्यू होने में। अभी पहले जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources। ऐसे resources जो physically, chemically, mechanically प्रोसेस करके दोबारा से बनाए जा सकते हैं और वो बार बार रिन्यू किए जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उन्हें बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल इसका क्या है? सोलर, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? ये सारी चीज़ों को हम रिन्यू कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज ऑकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। आपने पता है फॉसिल फ्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं? किसी की डेथ या फिर एनिमल के डेथ होने के बाद उनकी बॉडी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर कंपोज होने लग जाती है, और लाखों सालों के बाद जब हम अंदर खोदते हैं तो उस बॉडी का बनता है फॉसिल फ्यूल्स। तो उन्हें बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स, जो एक बहुत ही लंबा ज्योग्राफिकल टाइम लेती है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में। स्मॉल पीरियड में फिर से रिप्रोड्यूस होने वाले रिसोर्सेज को रिन्यूएबल, और लंबे समय के बाद जो एक बहुत ही लंबे जनरेशन के बाद कोई चीज़ अगर रिप्रोड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These resources take millions of years in their formation. Some of these resources are metals are recyclable. Okay. दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारे पास 4 टाइप्स हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ओनरशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी चीज़ को अगर हमारा उसकी चीज़ पर पूरा अधिकार है तब हम उसके ओनर होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल का अधिकार किसी चीज़ पर है तो वो इंडिविजुअल ओनरशिप हुई, अगर पूरे कम्युनिटी का है तो वो कम्युनिटी ओनरशिप हुई, अगर पूरे नेशन का है तो नेशनल कम्युनिटी हुई, और पूरे इंटरनेशनल का है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हुई। एकदम आसान पिक्चर्स में समझते हैं दोस्तों। ये देखिए, अगर हमारा खुद का घर है जिस पे हमारा पूरी तरीके से अधिकार है तो वो हो गया इंडिविजुअल कम्युनिटी। अगर एक पार्क है जिसमें वो मोहल्ले के सारे लोगों का अधिकार है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड। और अगर पूरी नेशन का कोई चीज़ पर अधिकार है, जैसे कि ट्रेन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पूरे नेशन का उसके ऊपर अधिकार है, इसलिए वो नेशनल कम्युनिटी हुई दोस्तों। और एक ऐसा ओशन जो 2-3 कंट्रीज़ के बीच में है, उसका उस ओशन पर अधिकार सारे कंट्रीज़ का है, सभी लोगों का है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओनरशिप दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इसमें समझने जैसा कुछ भी हार्ड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। लास्ट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ का कितना डेवलपमेंट हुआ है, कौन से स्टेटस तक उसका डेवलपमेंट हुआ है, अगर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है तो हमने उसे एक्वायर किया है कि नहीं किया, इसके बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप्स है। अभी वो 4 टाइप्स कौन से हैं? एक पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। अभी तक के जितने भी टाइप्स थे वो इतने सिंपल थे कि आपको पढ़ते ही वो समझ में आ जाए, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला टाइप देखते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज होते क्या है? रिसोर्सेज विच कैन बी फाउंड इन रीजन्स बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अरे वाह, ऐसे रिसोर्सेज है जो रीजन में हैं, एक जगह पर अवेलेबल है, बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, पर हमने उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, अभी तक यूज़ नहीं किया है, उनको बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका एग्जाम्पल देखो, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far this have not been developed properly. वेस्टर्न पार्ट्स इंडिया के, राजस्थान और गुजरात के साइड में हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, बट अभी तक हमने उसके ऊपर कोई भी एक्शन प्लान नहीं लिया। Then this are known as potential resources.
पोटेंशियल है बट अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जब हम रिसोर्स को टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे तब उसके अंदर पोटेंशियल होगा. सो दिस आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. रिसोर्सेज है, उनका सर्वे हो चुका है, कितनी क्वांटिटी में है, कि कौन सी क्वालिटी में है, ये सारा डिटरमाइंड है और यूटिलाइज्ड है. टेक्नोलॉजी भी है और उसको यूज़ भी हम करते हैं, फिजिबिलिटी भी है. उन टाइप ऑफ रिसोर्सेज को बोलते हैं डेवलप्ड. नाम में ही पता चलता है डेवलप्ड रिसोर्सेज. ऑलरेडी डेवलप्ड जो रिसोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनको बोलेंगे डेवलप्ड. ओके, अभी स्टॉक क्या होता है? मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीड्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. मतलब स्टॉक है भाई, इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, उसका पोटेंशियल भी अवेलेबल है ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बट ह्यूमन बींग्स के पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको यूज़ कर सके, उसको अपने लाइफ में इंक्लूड कर सके. ऐसी रिसोर्सेज को बोला जाता है स्टॉक रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इन्फ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हम सभी को पता है, साइंस में पढ़ा है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना जाता है, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. इसको हम एनर्जी के सोर्स में बहुत अच्छी से यूज़ कर सकते हैं. But we do not have the required technology, know how to use them for these purpose. Hence, it can be considered as stock. स्टॉक पड़ा हुआ है बट हम लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से यूज़ किया जाए, उसको बोलते हैं स्टॉक. जो अगला रिसोर्स है ना दोस्तों, रिजर्व. ये एक ऐसा टाइप का रिसोर्स है जो स्टॉक को सस्टेन करता है, उसका अपोजिट है. स्टॉक और रिजर्व ये दोनों अपोजिट है. किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ. रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड. हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्स को यूज़ करने की, बट हमने अभी उसको यूज़ करने की शुरुआत नहीं की है. दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. फ्यूचर प्लानिंग भी कोई चीज़ होती है. फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमने रिज़र्व करके रखी है ये वाले रिसोर्सेज को. ऐसे रिसोर्सेज जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट हमने खुद से इस रिसोर्सेज को रिज़र्व करके रखा है फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only a limited extent. Thus, the water in the dam, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. I think all of the doubts regarding types of resources are being cleared in this video. If not, if you have any doubt, comment me down. I'll surely try to clear your comments in the comment, or maybe I'll make another video on it. I hope you like the way I explain. I hope you understand the concepts of my videos. Please share it with your friends if you do, and yes, follow the drill guys. Like, share and subscribe to my YouTube channel so that you will be getting videos regarding 10th, 11th, 12th, and further if you are going to another classes then maybe those also. So yes, thank you.